स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टॉपिक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आपको याद होगा अभी इससे फर्स्ट लेक्चर इससे पहले वाला जो लेक्चर था दैट वाज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस का वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा दिस मीन्स दैट के 3 सर्किट कंपोनेंट्स रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पास अटैच होंगे। सीरीज़ में तीनों सर्किट कंपोनेंट्स सीरीज़ में अटैच होंगे और पैरेलल में तीनों सर्किट कंपोनेंट्स जो हैं वो पैरेलल में अटैच होंगे। सो दिस टॉपिक इज हैविंग 3 नेम्स. इट कैन बी नोन एज अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, or it can be known as parallel RLC circuit, or it can also be known as a rejected circuit. यहाँ पे आप AC सोर्स के साथ R, L और C तीनों सर्किट कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलल में आपके पास अटैच हैं। As we know the behavior of the AC through the resistor, uh, uh, through the resistor voltage and current they are in phase. There is no phase difference between the voltage and current through the resistor, but through the inductor voltage leads the current by 90 degrees and through the capacitor voltage lags the current by 90 degree. तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, so this phasor is showing the resistor and this phasor is showing the inductive reactance and this phasor is showing the कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और वी कैन से द इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज लीडिंग द resistance by the 90 degree and the capacitive reactance that is lagging the resistance by the 90 degree. तो यहाँ पर अगेन हम वही वाला कंसेप्ट जो कि हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में यूज़ किया था वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, दैट एज the omega L and omega C, these two reactances are frequency dependent. Omega L that is equal to 2 pi fL and omega C that is equal to 1 over 2 pi fc. So the variation of the frequency that affects the values of the reactances. Increase in the frequency that will increase the inductive reactance and increase the frequency that will decrease the capacitive reactance. Mean to say they are having the opposite behavior regarding the frequencies, but we can check them for the low and high values of the frequency. For the low value of the frequency omega L that will be having a low value, and for the low value of the frequency omega C that will be having a high value. Same is the case for the high values of the frequency. At high value of the frequency omega L will be having a high value and omega C will be having a low value, but there are some intermediate values of the frequency and at those values these two rectices they become equal और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल एंड ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी. यहाँ से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जैसे कि हमने लास्ट में ड्राइव की थी दैट विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी. So the equation for the resonance frequency that is the same for the series resonance circuit as well as for the parallel resonance circuit, but the behavior of the AC through these components and the cancellation of these components they will draw different results. As we have seen that in series resonance circuit when L and C cancel out each other then the impedance that will become minimum, but in this case when the L and C they cancel out each other in this case as these components are connected in parallel, so when these two will not be there then our resistance there will be minimum because these components are attached in parallel. तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल में आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही होती है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर ओमेगा एल प्लस 1 ओवर ओमेगा सी. सो दिस इक्वेशन शोज कि जैसे ही आपके पास ये दो फैक्टर्स जो हैं ये कैंसिल आउट होंगे आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम मैक्सिमम. तो जब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो उस केस में अगर आप फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान में एक ग्राफ प्लॉट करें जैसे कि हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में भी किया था, तो इंटरमीडिएट वैल्यू लो और हाई वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर आपके पास एल और सी दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे वहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम आती है. For the lower and the high values of the frequencies omega L and omega C they are not cancelling out each other, so this equation draws a high value. तो इस वजह से जब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की ड्राज अ लोअर वैल्यू, तो जब लोअर वैल्यू आएगी तो आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी. द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी मैक्सिमम for the low value of the frequency and the value of the current will also be maximum for the high value of the frequency. But for the intermediate values जहाँ पर आपके पास ओमेगा एल और ओमेगा सी दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास
टोटल जो वैल्यू बच रही है दैट इज टोटली रेजिस्टिव एंड दैट विल बी हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू, इम्पीडेंस विल बी हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट द रेजोनेंस। और जब मैक्सिमम वैल्यू इम्पीडेंस की होगी देन द लो वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अगर आप इस चीज़ को आप इसको प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरह की शेप आती है और यहाँ पर ये पार्ट जो है ये शो कर रहा है कि एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस इज हाई and for the high value of the impedance there will be a flow of the low value of the current। तो हम इस चीज़ से कुछ जो है वो रिजल्ट्स ड्रा कर रहे हैं जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल एट रेजोनेंस दीज ऑल रिजल्ट्स आर कंक्लूडेड एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस आपके पास जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस मीन्स जी दैट इज़ टोटली रेजिस्टिव, सिर्फ रेजिस्टेंस जो है ये बच रही है, सो इम्पीडेंस इज टोटली रेजिस्टिव। नेक्स्ट एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज वेरी हाई। थर्ड वन एट रेजोनेंस करंट इज वेरी लो एंड अगेन एट रेजोनेंस। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हम यहाँ से नहीं कंक्लूड कर रहे हैं बल्कि इसकी कंक्लूजन, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो एक्सपेरिमेंटली हुई है कि रेजोनेंस में आपके पास बेशक ये इंडक्टर और कैपेसिटर वाले पार्ट्स एक दूसरे को इफेक्टिवली कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू करंट की वैल्यूज़ चेक करें देन द एट रेजोनेंस द करंट थ्रू इंडक्टर एंड द करंट थ्रू कैपेसिटर दे मे हैव high values, they may have higher values than IRMS. So these are some conclusions that we have drawn from this topic. Again I'm concluding and I'm wrapping up the topic by saying that in parallel resonance circuit 3 circuit components are attached in the parallel. Again we have to check the frequency dependence of the inductive reactance and the capacitive reactance to find out the situation at which these two reactances become equal। और जिस सिचुएशन पे ये दोनों reactances equal होती हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर है पैरेलल और सीरीज़ का। उसमें आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम थी और करंट मैक्सिमम फ्लो होता था। यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी और करंट मिनिमम फ्लो होगा। इम्पीडेंस कुछ रिजल्ट ट्रा हो गए, इम्पीडेंस रेजिस्टिव है एट रेजोनेंस, इम्पीडेंस मैक्सिमम है एट रेजोनेंस, current low है at resonance, and fourth point that is experimentally verified that although at resonance although these L and C are effectively cancelling out each other but the current through L and C they may have high values in the source current। So until next topic, Allah Hafiz।